Very good morning, students. Today we will be completing chapter which we have started in our last session, and that is about Ashoka, the emperor who gave up war. Though we have discussed brief out, we have done with the introduction and the briefing of the chapter. Today what we will be doing, we will be giving a thorough reading to the chapter and marking the important portions along with the reading of the chapter. So please be with your book and a pencil. So the chapter starts with defining you a very big kingdom, an empire. In this chapter we will, earlier we have learned about Janpadas and Mahajanpadas. In this chapter we are going to understand first of all how are empires different from kingdoms. What is the difference between empires and kingdoms? Then we will talk about Mauryan dynasty. We will understand what a dynasty is and how the Mauryan dynasty established a empire and how they became so powerful. What were their strategy, who was the main or important ruler, and what kind of support they were getting, what was their administration. And then we will be reading much more about Ashoka, who is the one of the most important ruler in this dynasty, and we will talk about how he expanded the extension of his kingdom empire. He made convert that into a big kingdom, that is an empire, and how and why then he gave up war, and after war what changes does happen in Ashoka's life, and how he pursued in spreading that belief of his. So on the very first page there is a picture depicting this picture. Everybody all of us have seen on all the currency notes, and it is there on even the visiting card or even on the cap of the important persons, important administrative persons. So the lion that we see on our notes and coins have a long history. They are carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Saranath. Saranath, you very well know where is Saranath. It is in Varanasi. तो जो यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये 4 लाइन्स हैं जो क्लिक करने की वजह से फ्रंट से जो बैक वाला लाइन है वो आपको दिख नहीं रहा है, और ये अशोका के टाइम पे बना था और इसको बहुत इम्पोर्टेंस है। और हमारा ये, आपको पता है ना नेशनल एम्बलम क्या होता है, नेशनल सिंबल्स आप सब ने किए होंगे, राइट। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surface. You very well know that it was a practice which was followed by all the rulers across the history. They used to get their important events of the period of their rule excuse me, they just it was a practice that the kings get the important events in their life inscribed, उनको प्रिजर्व करते थे। उनके जो पोएट्स होते थे वो या तो मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन के रूप में रखते थे, ताकि वाई दे डू सो, ताकि उनका हिस्ट्री जो है खत्म ना हो, उनको दुनिया जान सके उनके जाने के बाद भी। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं हमें बहुत हेल्प करते हैं। और द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका के दादाजी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की थी अबाउट 2300 years ago. चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन कॉल्ड चाणक्य और कौटिल्य। उनका एक बहुत ही अच्छा मंत्री, जिसको कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत ही ज्यादा कूटनीतिज्ञ, जो राजनीति को समझने वाला था, ऐसा उनका एक मंत्री था। और उस मंत्री को, जिसका नाम चाणक्य था, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनको आज की डेट में भी अप्रिशिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज फोरसाइटनेस, हिज पॉलिसीज विच हेल्प दिस मौर्यन एम्पायर टू रीच प्लेसेस। इनका बहुत बड़ा योगदान था मौर्य साम्राज्य जो था उसको फैलाने के लिए भी। और मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. I have explained you that this paragraph is very important. We have discussed this earlier also, and many multiple questions can come from this particular paragraph, who founded Mauryan dynasty,
right? And then what was the name of the wise person who supported Chandragupta? What was the name of the book written by Chanakya? All these, there are many questions which can come from this particular portion. So please do read this paragraph very keenly. Okay. Now in the dialog box, there is a word called dynasty. Definition of this word has been given over there. When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. जब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौता, इस तरह से जो राजगद्दी है वो ट्रांसफर होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कॉन्टिन्यूशन में, उनको कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, कोई और किसी और को इलेक्ट करने की बात नहीं होती, तो वो एक डायनेस्टी, वो फैमिली जो होती है एक डायनेस्टी बन जाती है. और द मौर्यन डायनेस्टी जो थी, इसके 3 इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र जो थे बिंदुसार, और फिर बिंदुसार के पुत्र अशोका. तो ये डायनेस्टी, अगेन क्वेश्चन कैन कम, नेम 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. या एक ये भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डायनेस्टी. सो लेट्स मूव अहेड. And on next page you will be seeing a map. The reading of map is particularly important to understand the concept. Here there are 2 dots which are being used, and in the index the meaning of these 2 dots is there. Okay, so what was the way to read a map? Just go to the index, read what information a particular thing is depicting, and then try to understand and read the map. So here the red dots are describing or mentioning the places where inscriptions has been founded, inscriptions which have been created in the Mauryan dynasty during the Mauryan empire. Okay, जो Mauryan empire में बनी inscription, वो किस किस city से मिली, वो red dot depict कर रही है. To name some, like we have Meerut, we have Sopara, we have Manki, Girnar. There is this map is like misprinted in my book. So the Kandhar. So extent देखिए, Kandhar is in present days Afghanistan. पहले पाकिस्तान नहीं था, तो तक्षशिला, ये सब चीज. और जो रेड, जो आपकी ब्लैक डॉट्स है, वो इंपॉर्टेंट सिटीज डिपिक्ट कर रही है, जैसे पाटलिपुत्रा विच वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, एंड देन उज्जैन एंड तक्षशिला. उज्जैन जो था नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का पैसेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रोविंशियल कैपिटल था मौर्यन एम्पायर की. Then we have Takshila, which was a gateway to the northwest countries. ये बाहर जाने का, हिंदुस्तान से नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में एंटर करने का गेटवे आप इसको कह सकते हो. दिस वाज आल्सो द प्रोविंशियल कैपिटल. मतलब इस चीज को ऐसे रिलेट कीजिए कि उस टाइम पर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं था, तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट to control a area which you have won, because once after the war you go back to your capital city, then वहां पर आप किसी को डिप्यूट करके जाते हो जो टेक केयर करता है. तो उन जगहों को कंट्रोल में रखना, क्योंकि जो नेटिव्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं और फिर लड़ाई होती है या वहां हार हो सकती है, तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए इनको बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते थे. तो ज्यादातर ये एफर्ट्स कहाँ लेते थे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज होती थी वहां ये अपना मेन एफर्ट्स डाल देते थे. लाइक जहां पर किंग रहता है, जो कैपिटल है, वहां तो वो मेन एफर्ट्स डालेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. लेकिन इसके अलावा जो मेन और सेंटर्स होते थे वहां पर भी ये अपना होल्ड रखने के लिए उसको डेवलप करते थे. तो मौर्यन एम्पायर के अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट सिटीज थी, पाटलिपुत्र, इट वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर. देन दे हैव उज्जैन एंड तक्षशिला विच वर वेरी इंपॉर्टेंट trading centers, and you can say they are the provincial capitals of Mauryan empire. So there were several cities in the empire marked with black dots on the map. These included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. Takshila, please underline, Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है, इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो वही लोग रहते हैं, रिमोट एरियाज में तो नहीं रहते ना. तो इन लाइक आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार. लेट मी सी, जस्ट रेफर टू द बैक.
तो इन अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड से आया था, क्लिक बट इट्स केप्ट, सो मूव ऑन एंड लेटर ऑन वी विल कैच अप विद दिस थिंग. इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड herders. In some areas such as central India there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different part of the empire spoke different languages. They probably ate different kind of food and wore different kind of clothes as well. आप देख रहे हैं एक्सटेंड कितनी बड़ी हुई है, अफगानिस्तान से लेकर और बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक मुझे दिख रहा है मैप के अंदर. इवन कर्नाटका के अंदर भी दिख रहा है, सिर्फ केरला हैज बीन लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द प्लेसेस. डाइवर्सिटी आपको पता है इंडिया में कितनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन, कल्चर, एवरीथिंग, लैंड फॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, एवरीथिंग इज सो वेरिड इन इंडिया कि लोगों का जो है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उनके ईटिंग हैबिट्स में, उनके क्लोथिंग में, उनके लाइफस्टाइल में, उनकी लैंग्वेज में, सब में डिफरेंसेस है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, की एम्पायर्स जो थे वो किंगडम से किस तरह से अलग थे. एम्परर्स को क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होते थे किंग से, क्योंकि उनका एरिया लार्ज है, तो बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, सो दे ऑल्सो नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस. उनको पैसा भी चाहिए, रेवेन्यू भी ज्यादा चाहिए था, टैक्स भी ज्यादा लाइव करते थे, ऑफिशियल्स भी ज्यादा थे, मिलिट्री पर्सन्स भी उनके पास ज्यादा थे. क्यों? क्योंकि बहुत सारे एरिया को कंट्रोल करने के लिए उनको हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होते थे, तो इसलिए उनके ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत बहुत ज्यादा होते थे और उनका जो भी टेक केयर करना होता था, जो भी उनपे एक्सपेंस करने होते थे, उसके लिए किंग को रेवेन्यूज जो है वो लगाने होते थे. रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली. देखिए जो मेन एरियाज होते हैं जहां पर राजा रह रहा है, जैसे पाटलिपुत्र में अगर राजा रह रहा है तो वहां उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा, ही कैन वॉच ओवर द डे टू डे एक्टिविटी, राइट. तो देयर विल बी ऑफिशियल्स हु विल बी अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस. कौन कौन टैक्स देता था? फार्मर, हार्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, ये सब टैक्स देते थे. Who lived in villages and town in the area. Officials also punish those who disobey the ruler's order. Law and order maintain करने के लिए आप ऐसे officials भी रखते हैं जो punishment भी देते हैं, because law and order enforce ही I think तभी होता है अच्छे से जब आप कुछ उस पे punishment रखते हैं, नहीं तो लोग तो break करते ही रहते हैं rules. Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spices kept a watch on the officials. मतलब ऑफिशियल भी कहीं अपनी पावर का मिसयूज ना कर लें, उसके लिए जासूस होते थे उनके पास जो कि पूरा वॉच रखते थे. तो राजा बहुत इफेक्टिवली, इट इज नॉट अ इजी जॉब टू लाइक rule a country. It is very very tough thing. You need to do many things, right? And of course the emperor supervised them all with the help of the member of the royal family and senior ministers. तो ये क्या करते थे, जो दूर वाले एरिया थे, इंपॉर्टेंट है, तो उसकी देखभाल के लिए अपने जो ट्रस्टवर्दी या लॉयल जो पीपल होते थे, अपनी फैमिली मेंबर्स होते थे, उनको डिप्यूट कर देते थे, क्योंकि वो उनको पता है कि हम एक ही परिवार हैं, अगर आपस में गद्दारी भी करेंगे तो हमारा ही नुकसान है. Besides, there was vast areas between these centers. Here the Mauryans tried to control road and rivers. Mauryan किसको कंट्रोल करते थे? रोड और रिवर्स को करते थे, क्योंकि पहले जो भी ट्रेडिंग जो किस रास्ते से होती थी, या तो रोड से होती थी या रिवर वाटर से होती थी, तो वो उन्हीं को कैप्चर करते थे ताकि जो भी लोग उनको यूज करें तो उनको टैक्स आए. वो उस पर टैक्स इम्प्लाई करते थे कि हमारा कंट्रोल है, आपको अगर यहाँ से जाना है, गुजरना है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. Okay, so here question आ सकता है, why Mauryans try to control road and rivers? The Mauryan tried, please underline this thing, the Mauryan tried to control road and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. टैक्स भी लगाते थे और कभी कभी प्रजा जो है राजा को खुश करने के लिए ट्रिब्यूट भी देती थी. अगर राजा उनका देखभाल कर रहा है तो उनको भी पता है कि हमने जो उगाना है, बनाना है, वो राजा को देंगे. तो ट्रिब्यूट जो होता है भेंट होती है, और टैक्स जो होता है वो कर होता है. टैक्स के अंदर फोर्सफुल वाला एलिमेंट होता है, ट्रिब्यूट आपकी मर्जी होती है, आप जो भी ट्रिब्यूट किसी को भेंट करना चाहे. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन. इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एट ट्रिब्यूट. देखो अर्थशास्त्र में मेंशन है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट था वो ब्लैंकेट्स बनाने के लिए मशहूर था, वहां से उस चीज से टैक्स आता था, और साउथ इंडिया के अंदर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स थे. तो
अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड थी उनकी, तो जहां से जिस चीज की वजह से टैक्स आता था वो भी मेंशन कर रखा था। अंडरलाइन कर लो, पूछा जा सकता है आपसे कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया गोल्ड एंड प्रीशियस साउंड्स वर लाइक प्रोमिनेंटली ट्रेडेड और यूज्ड, तो साउथ इंडिया इसका आंसर है। ट्रिब्यूट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से ये देते थे, ये टैक्स की तरह रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट नहीं किए जाते थे। तो टैक्स और ट्रिब्यूट का डिफरेंस हो गया यहाँ पर। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। People living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephant, timber, honey and wax to the modern officials। देखो, जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जंगल में आदिवासी की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनको भी तो जंगल से बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो एज अ ट्रिब्यूट या एज अ टैक्स आप कह दो कि वो जो चीज थी, वाइल्ड एनिमल्स वहां के जैसे एलिफेंट या टिम्बर, लकड़ी महल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, कितनी चीजों में काम आती थी। हनी दे सकते थे, वैक्स दे सकते थे, जो कि राजा को जो था यूज करने के लिए काम आए। अब ये डिपिक्ट कर रहा है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seculus Necator. Please underline this thing, this is very important. क्योंकि जो बिंदुसार थे उनकी एक ग्रीक लेडी के साथ शादी भी हुई थी, और नहीं, चंद्रगुप्त की हुई थी, और वो बिंदुसार की जो थी वो मदर थी। लेट्स रीड इट आउट। Magnathus wrote an account with what he saw. Here is the part of the description. उसने जाकर राजा को उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी दी। The occasion on which the emperor appeared in the public are celebrated with grand royal processions. He is carried in a golden palanquin, मतलब एक को सोने की पालकी में बिठाया जाता था राजा को, और उनके गार्ड्स जो होते थे वो डेकोरेटेड हाथियों पे बैठते थे जो सोने चांदी से डेकोरेटेड होते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच live birds including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. The king is normally surrounded by armed women. देखो, he is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. देखिए राजा को कितना खर्चा था। सत्ता के लिए लोग जो थे उनको थ्रेट रहती थी हमेशा लाइफ की, तो ये प्रिकॉशंस वो लेते थे, तो ये स्मार्टनेस थी। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, उन्होंने लिखा दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. It is surrounded by a massive wall. It has 750 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 story are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. देखो ये डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? ये एक ग्रीक का एम्बेसडर दे रहा है। राजा तो अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखने के लिए, अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए अपने पोएट्स रखते थे अपने महल में, लेकिन जो टूरिस्ट होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, वो भी कई बार उनकी बुक से भी हमें अपने देश के बारे में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं। And then the next thing is कि why Ashoka is a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. Most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. Please underline this thing. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हु इज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर बन रहा है क्वेश्चन, और इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन मिल रहा है कि इन विच लैंग्वेज एंड इन विच स्क्रिप्ट द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड और रिटन। तो प्राकृत में थे और ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। अशोका और कलिंगा का वॉर, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर टू वॉच द टेली-सीरियल Ashoka the Great and if possible the movie Ashoka। वो बेस्ड थी कलिंग के वार के ऊपर। कलिंग जो है ये कोस्टल ओडिशा, जो जिसको हम आज ओडिशा बोलते हैं, उसका पुराना नाम था। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, मतलब जब कब्जा करने के लिए वो वार कर रहा था तो वो वहां पर भी उसने बहुत भयंकर इसका वॉर हुआ, और उसके बाद ही वो सो हॉरिफाइड, जब एंड में इसने ब्लड शेड देखा, वायलेंस देखी, तो इसने डिसाइड कर लिया था उस वॉर को जीतने के बाद कि मैं अब फर्दर कोई लड़ाई नहीं करूंगा। और ये हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा पहला राजा था जिसने जीतने के बाद ये कसम खाई थी कि अब आगे से मैं कभी कोई भी वॉर नहीं करूंगा, मतलब स्पिरिचुअलिटी जाग गई थी इसके अंदर। ठीक है, तो
अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है वो कैसे कलिंगा के वॉर को डिस्क्राइब करती है वो नीचे डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लाइक देयर इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्क्वर्ड Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh of people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners. Brahmins and monks also die. People who were kind to their relatives and friends, to their slave and servant die or lost their loved ones. That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it. So now the concept comes Dhamma. ये एक प्राकृत वर्ड है धम्मा, जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है धर्मा। आप इसको समझ आया कि धर्म क्या है, लोगों में प्यार, अपना प्यार कैसे बढ़ सकता है, भाईचारा, पीस कैसे बढ़ सकता है, वो अशोका का धम्मा जो है, जो कि प्राकृत शब्द में धम्मा बोलते हैं, एक्चुअली धर्म है। हिंदी का अगर हम देखें, संस्कृत का देखें तो धर्म है। तो अशोका's धम्मा डिडंट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। बलि नहीं देनी, किसी भगवान की पूजा उसमें नहीं है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम। उसके राज्य के अंदर बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग थे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और जो जितने भी स्लेव्स और सर्वेंट्स थे उनसे इल ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इवन फैमिलीज में भी लड़ाई होती थी, नेबर्स के साथ भी लड़ाई होती थी। तो अशोका ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि लोगों को सिविलाइज करना है, लोगों को पीस की तरफ लेके जाना है, लव की तरफ लेके जाना है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महामता। धर्म अधिकारी उन्होंने अपॉइंट किए जिन्हें धर्मा महामतास कहा गया, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को जाके धम्मा की टीचिंग देते थे, उनको प्यार से रहना, पीसफुल रहना सिखाते थे। बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्रिप्ट ऑन द रॉक्स एंड पिलर्स, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड टू इट। उसने ही मेड इट श्योर डैट कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको भी उसके जो उपदेश हैं, जो जिन चीजों को फॉलो करवाना चाहता है अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, वो उनको बहुत ही इजिली बताए जाए। Ashoka also had messenger to spread Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. उसने अपने राज्य की तरक्की के लिए रेस्ट हाउस खुलवाए, रोड बनवाए, कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पानी की कमी ना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जानवरों के लिए भी और आदमी इंसान के लिए भी उसने जो है वो अवेलेबल कराई। आपको एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये रामपुरवा बुल इसको बोलते हैं और एक ये पॉलिश स्टोन से बना हुआ है। दिस वॉज पार्ट ऑफ अ मोरन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार एंड नाउ हैज बीन प्लेस्ड इन राष्ट्रपति भवन में। इसको रखा गया है स्कल्पचर को दिखाने के लिए कि उस टाइम का आर्किटेक्ट जो था वो कैसा था। राइट। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा को उसने क्या मैसेज देना चाहता था। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल। लोग जो थे जब बीमार होते थे बहुत सारे पूजा वगैरह करते थे, या जब उनके बच्चों की शादियां होती थी तो बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, बच्चे पैदा हुए तब भी, कहीं जर्नी पे जा रहे हैं तब भी। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस? दीज आर बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, treating all creature with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize others. देखिए ये सब बातें जो आज भी हम civic sense जिसको बोलते हैं, moral values बोलते हैं, वो कितनी पुरानी चल रही हैं। Everyone should respect the others people's religion, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है हमारी कंट्री के अंदर शुरू से है, तो लोगों के अंदर टॉलरेंस होना चाहिए, इस चीज को एक्सेप्ट करने का उनमें समझदारी होनी चाहिए कि हाँ इनके विचार, इनका धर्म अलग है, तो हमें इनको उस चीज के साथ ही अपनाना है। If one praises one's own religion while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion and respect it.
ठीक है, तो ये मैसेजेस जो हैं, जो प्रीचिंग्स हैं अशोका की, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लीजिए। इसके अंदर से आपको क्वेश्चंस आ सकता है। अब हम जब भी चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ते हैं, जब भी जो चीज हम अपने टाइम में इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ हम कंटेम्पररी टाइम में यानी उसी समय में वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो भी पढ़ते हैं। तो लाइक देखिए, इस टाइम इसमें एल्सवेयर कहीं और के बारे में बताया, क्या बता रहे हैं, सम बट बिफोर द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अबाउट मौर्यन एम्पायर टू 2300 ईयर फाउंडेड बताया ना, तो इसके अंदर और 100 साल पहले की बात कह रहे हैं। एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पता है आप सबको ना। It was meant to protect the northern frontier of the empire from pastoral people. Pastoral जो ये लोग आते जाते हैं ना बाहर से, चरावा टाइप थे, जो आके अटैक कर सकते थे, लूटपाट करते थे, उनको रोकने के लिए additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontier of the empire kept shifting. The wall is about 6,400 kilometers long and is made up of stone and brick. With a road along the top, several thousand people work to build the wall. There are watchtower all along at a distance of हर 100-200 मीटर की दूरी पे एक घड़ी लगी हुई है। और इसकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर वॉल ऑफ चाइना। और आपको यहाँ मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बहुत विश्व की कहते हैं, उसको ऊपर से भी देखो ना स्पेस से तो भी दिखती है, वो इतनी बड़ी वॉल है। उससे थोड़ी सी छोटी ऐसी ही विशाल एक ग्रेट वॉल जो है हमारी कंट्री में भी है। एंड टू यू विल बी लाइक वेरी प्राउड कि वो आपकी अपनी स्टेट राजस्थान में है। तो डाउट क्लास में आप सब मुझे उसका नाम बताने वाले हैं, ठीक है। आई विल बी पुटिंग दिस क्वेश्चन कि जो हमारी इंडिया की ग्रेट वॉल है, जो कि आपके स्टेट राजस्थान में ही है, तो आप मुझे बताएंगे उसका नाम और उसके बारे में। सो कैच यू अप इन द लाइव क्लास। That's all for this chapter. In next class we will be starting a new chapter. Bye for now. Take care.